First 2 attempts, I failed the prelims. Third attempt, I wrote the mains. Fourth attempt, I am here in front of you. Learning to dealing with failure is very, very important because failure are the windows to introspection. गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे किससे? I was the worst manager of time. Worst. I could waste away hours and hours and hours in doing something really futile. इतना पढ़ा, practice करना भूल गए. It's not the huge mountain in front of us which wears us out. It's the small pebble in our shoe which does the job. So first of all of you are English-speaking students? Yes. All right. I feel so happy coming here. I'm so delighted. And you know, when you enter a room, the energy changes. When I was out there, I had this proper script in my head. यहाँ से start करना है, यहाँ पे खत्म करना है. But when I came in, I saw all your faces. I saw the happiness on your faces, and it directly changed. And the words that I'll be choosing now will directly be from my heart. So there's a very simple question that I would like to ask you. There are two wolves fighting. Two wolves fighting. One is hope and the other one is depression. Who would win? Alright, think again. बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम. कुछ हमसे नहीं हो पाया है, then who would win? We don't have an answer, right? The answer is the one you would feed would win. We have to feed the one we want to win. All right. So this is my journey and I'm here to tell you that how I chose the right one. Because you know, success is a very long journey and it is a very uncomfortable journey. Very uncomfortable. So we have to be comfortable being uncomfortable every day. रोज खुद से लड़ना पड़ता है because we all like our comfort zones. We all want to study for a very limited period of time. Nobody likes studying. I was the person who didn't like studying at all. So I am here to tell you the story that if I can, anybody can, and if I can, all of you can. यहाँ पे जो भी आपको आएगा, I was also in a room like that. तो उसमें मुझे ये कहा गया, people told me that out of all of you, only 1 or 2 will be able to qualify. I couldn't think whether to be motivated or demotivated by that. I am not here to tell you that. I am here to tell you that each and every one of you can. Because if I can, you can too. I didn't like studying at all. If I tell you my trajectory, you will be shocked. My graph has gone up, down, up, down, up, down. I have met all, because of my father's job, I was traveling. I have stayed in a lot of places. And all of the people who know me, if you ask them what kind of a person she was, some people would say, oh, she was a prodigy, very intelligent. And some would say, nalayak. कुछ नहीं आता जाता था इसको, ये कैसे हो गया, हमें समझ ही नहीं आया. Those starting moments I had. Starting from the beginning, I come from a very humble background where we didn't even speak Hindi. English तो आप छोड़ दीजिए. For the first 5 years, for the first 5, 6, 7 years of my life, I was speaking in Rajasthani with my grandparents. School भी घर के side वाला school था. I was a very intelligent kid there, very bright kid there. Then suddenly shifted to an English medium school. वहाँ पे समझ ही नहीं आया चल क्या रहा है. उसके बाद जब थोड़ा सा होश, I failed in my 5th standard. Complete fail, पूरा fail. लेकिन वापस नहीं देने को मिला. मुझे re-exam देकर I passed the examination. 10 तक फिर से होश संभाला. 10 तक I became an average student with a lot of potential. Everybody used to tell me, oh, you have a lot of potential. Then 11th and 12th comes the teenage. Teenage tried me as well. Made all the social mistakes that everybody makes. Yes, everything. Then this was the dip. Then went to a college. I went to a college named DB Girls College. It's an autonomous college. Very simple college.
Hindi speaking girls. There I sat for an examination, there I sat for graduation with the subjects history, economics and geography. मतलब सोच लिया था, यहाँ तक सोच लिया था. But I didn't have a way. नहीं समझ आ रहा था क्या करना है. But 11th और 12th के teenage years देखने के बाद I decided कि पढ़ लेते हैं, पढ़ने की जरूरत है. Let's study. Then I studied and I topped the college. It was a shocker for me. Girls used to come to me and ask me, दीदी कैसे करें हम? Then that was the moment I realized, oh हम लायक हैं इसके कि कोई हमसे पूछे कि how did you do that? Then I started building my confidence. This was the journey of building the confidence. The purpose of telling you this story is to tell you that our journey is like a trampoline, jumping on a trampoline. The more we thrust down, we should know that that is our way to go up. शायद 11th और 12th में डिप नहीं मारी होती तो ग्रेजुएशन में अकल नहीं आई होती. You know, these dips that we make are very, very important for us. And then, you know, these new notions, I am here to tell you, I have a slightly varied notions of certain things that, for example, self-affirmation, manifestation, self-love, self-respect, whatever you think of all of these things, just take them out of your head. Because I am going to tell you how to use these things properly and in the right manner. Let's talk about self-affirmation first. Self-affirmation किस काम का जब हमारा कोई टारगेट खत्म नहीं हुआ. We took a target for a day. We couldn't complete it by the end of the day. और तब हम अपने आप को पैट करें, okay, nice, कोई बात नहीं. We do not need that. We need a little self-loathing. सेल्फ लव वही है जो आपको मजबूर करे टू हेट योरसेल्फ if you do not maintain your targets. You have to fight with yourself every day. What I did was, for example, I used to do these quizzes, little quizzes of 10 questions every day, and doing something so little every day becomes a task. That becomes a task. हम consistency maintain नहीं कर पाते हैं. But what I used to do is, हर दिन में टिक होना चाहिए, नहीं तो इस एक दिन की वजह से मैं फेल हो जाऊंगी. You know, अब call it a misconception, call it कि अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, but you have to go through that journey because I told you that this journey is not a comfortable journey. But once you get out of your comfort zone and you realize what you are capable of, and you realize that once I make my targets and I stick to those targets and I complete those targets. हर दिन का एक टारगेट होना चाहिए हमारा, हर दिन का. Once you complete it, I can give you in writing that you will not fail the examination. You will not. My parents call me Nanni Cheeti. They have been calling me Nanni Cheeti for 2 years now. This was my 4th attempt. First 2 attempts, I failed the prelims. 3rd attempt, I wrote the mains. 4th attempt, I am here in front of you. Let me take you through the story. First attempt, जैसे था कि है करना है, लेकिन उतनी पढ़ाई नहीं की जितनी करनी चाहिए थी. Far cry, doesn't matter. First, let's not talk about the first attempt. All right. लेकिन वो जो failure था, उससे I got to understand कि कितना चाहिए. तो don't wait for that failure. मैं आपको अभी से बता रही हूँ, and all of us know कि हमको कितना चाहिए. We know the books. We know what to do. We know everything. हम बस सवाल पूछते हैं, जवाब हमारे अंदर already है. We know how much we have to do. I often get the question, how many hours do we have to study? How many hours did you study? UPSC is not hour oriented. It's goal oriented. सब लोगों के लिए अलग अलग. If I give you a task and if I give you a task, you will take different amount of time in completing that task. So you have to decide those tasks for yourself, and then you have to allot it the time. Another thing that I want to talk to you about is, you know, it's not the huge mountain in front of us which wears us out. It's the small pebble in our shoe which does the job. You understand? ये जो बहुत बड़ा mountain है, it's not a big thing. So you have to find those little pebbles in your shoes. अभी if I tell you कि
social media is a distraction, YouTube is a distraction, this and this and this and this is a distraction, I will be wrong. Because these pebbles in your shoes are different for everybody. For example, if we take YouTube for an example, a person can waste away in front of YouTube and another person can learn everything from that side. So you have to make a list of your distractions. Cut them. There were many distractions for me. I cut them one by one. Procrastination was one of the biggest distractions that I had. एकदम से सोचने लग गए हैं, ख्याली पुलाव पकाने लग गए हैं. So there's a very thin line between manifestation and procrastination. Our manifestation should never take shape of procrastination. Manifestation should be accustomed with a plan. You need to have a plan. सोचना बहुत जरूरी है, because this brain of ours is very strong. If it can think it, you can do it. It can make you do it, because what we are capable of, our brain knows the best. आपको दुनिया कुछ भी बोले कि तुमसे नहीं होगा, किसी से नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है, तो आप उनको बोलो कि अगर आसान होता तो हर दूसरे आदमी से होता ना. लेकिन हमें हमारे दिमाग पे भरोसा है, और अगर हमारे दिमाग ने हमें परमिशन दी है कि हम ये सपना देखें, तो that can absolutely be true. All right, you have to have that trust in yourself. You have to have that faith in your process. I can tell you my process, but all of you have to make your own process. क्योंकि सबका सक्सेस का तरीका अलग अलग है. फिर वो तरीके पे पहुंच जाते हैं और फिर वो उल्टी सीधी चीजें बताते हैं, और फिर उसको क्या पता उनको फॉलो करने से you would do something nice. लेकिन you have to make your own way. You have to make your own way. For example, newspaper reading. I did newspaper reading in a totally different manner. मैं न्यूज़पेपर में सिर्फ एडिटोरियल्स पढ़ती थी, because of the answer writing and essay writing. उसके अलावा the current affair part I used to follow a very big process instead of this, and I enjoyed it because it suited me better. I used to watch a Hindu analysis video. Along with it, I used to make notes from it, because what happens is the newspaper is huge, the newspaper is vast. उसको पढ़ते पढ़ते हम खो जाते हैं कभी कभी. These videos that are available on YouTube, they tell you what to read exactly, where to put your thrust on. It worked for me. I made notes from it, and then I followed with some questions. What I did was solve questions in all the 3 stages. The only key to your success would be practice, 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 practice and practice. होता क्या है कि हम सोचते हैं कि we'll complete this and this and this and then we'll start practicing. Oh, I have 6 months ahead of me. तो पहले 4 महीने मैं सिर्फ पढ़ता हूं और फिर उसके बाद I'll start practicing. लेकिन I think that is a misconceived notion. Practice के लिए आपको, it's not a content and practice. Content and practice can go hand in hand. Practice करके भी आप content generate कर सकते हैं. I used to read, of course I used to read a lot. I used to make my content, I used to make my note, लेकिन along with it I used to solve thousands and thousands of questions जहां से भी content creation होता था. This is practice. Then when we come to mains, practice becomes the most important. What I did in my 3rd attempt, I failed my first mains in my 3rd attempt by 8 marks. Now I'll tell you another very interesting thing. And I failed my second pre by 2 marks. अब हम सोचेंगे कि किस्मत बहुत खराब थी. You know, I told you about a story in the beginning. Which wolf you have to feed? The wolf that I learned to feed was hope. You know, there's a problem with me. I'm an overly optimistic person. Overly optimistic, it can be called a drawback as well. लेकिन I am an overly optimistic person. When I got to know that I had missed the pre by 2 marks, I was the happiest person on this planet. What I was thinking was impossible was so near to me. जो तरीका मैंने अपनाया, उसमें उस तरीके को अपनाने से मैं सिर्फ 2 मार्क्स से दूर थी. And I knew I could do better. I knew I could do more.
So that's what I did in my third attempt and I passed the prelims. Then comes mains. इतना पढ़ा, प्रैक्टिस करना भूल गए. प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. घर पे जो पेपर्स लिखे 10 मिनट एक्स्ट्रा जा रहे थे. सोचा कि एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 10 का 15 हो गया. Even after that, I missed my mains by 8 marks. Then I thought कि content कुछ तो अच्छा होगा, इतने marks आ गए, तो if I could do that, I can do that again because I love the process. You know, so failure के साथ deal करना, learning to dealing with failure is very, very important because failure are the windows to introspection. गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे किससे? We make mistakes, we make amends. So that's what my point is. Find faults within yourself. सबसे बुरी सिचुएशन तब होती है कि हम फेल हो जाते हैं लेकिन पता नहीं क्यों. If you failed and you know why, you have won half the game. Trust me on that. If you failed and you know this is something that I did not do and this is something I could have done and I could have passed, then you are into the examination. प्री पास करना बहुत जरूरी है because once you write mains, you get the knack of it. You understand what the exam needs, you get into the process. लेकिन प्री से जब हम बाहर रहते हैं तो हम प्रोसेस को जान नहीं पाते, हम बहुत दूर हो जाते हैं प्रोसेस से. Now I'll proceed to your questions, so I'll conclude my journey and we'll talk more and more about all of these things. I'll talk to all of you about your doubts. So the crux of the matter is पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ. फेथ इन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ इनफ टू ब्रेक योरसेल्फ बिकॉज यू हैव टू फाइट विद योरसेल्फ एवरी अदर डे. नहीं मन करेगा हमारा रोज पढ़ने का, लेकिन द टारगेट दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ शुड बी कंप्लीटेड बाय यू. यू नो, we often hear कि time waits for none. We hear that. It's not true. If you learn to manage your time and if you learn to put your time in the fist of your hand, then time will run with you. You have to force the time to run with you because every person who will be here telling you how they did it, the most common thing among them would be how they manage their time. How I manage my time is I forced myself into it. Motivation मैंने ढूंढा ही नहीं साल भर, क्योंकि मैं साल का एक टारगेट बनाती थी, उसको मंथ में डिवाइड करती थी, वीक्स में डिवाइड करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू डिवाइड फॉर इट इन डेज एज वेल, एंड आई यूज्ड टू हैव टारगेट फॉर एवरी अदर डे. हर दिन का एक टारगेट होता था और जब वो नहीं पूरा हो पाता था, आई कुड नॉट फेस माई सेल्फ इन द मिरर. टॉक टू योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट. टॉक टू योर सेल्फ. वी कैन फूल एनीबडी. वी कैन फूल आवर पेरेंट्स, वी कैन फूल आवर फ्रेंड्स. देयर इज ओनली वन पर्सन वी कैन नॉट फूल. हु इज दैट पर्सन? Yes. We cannot fool ourselves and we should not fool ourselves. जो नहीं किया बोलो अपने आप को, नहीं किया यार बर्बाद हो जाएगी, बोलो अपने आप को ऐसा. I used to do many interesting things in my preparation. So one of the interesting things that I used to do was I used to keep a little photo on my study table. A smiling photo. किसका? खुद का. Who keeps a passport size photo on the table? My mother used to come to my room and she always used to protest कि भगवान का फोटो रखा जाता है स्टडी टेबल पे. एंड आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, माइंड यू. आई थैंक गॉड एवरी डे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. लेकिन मैं मम्मा को हमेशा कहती थी while pointing at my picture, right now the work which is required, इसी को करना है, भगवान नहीं करेंगे उसके लिए आके. अभी इसका काम है, अगर ये नहीं करेगी तो ये हंसता हुआ चेहरा रहेगा नहीं फिर. And I used to look at myself जब मैं नहीं पढ़ रही होती थी कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, रोएगी नहीं तो. I used to do that. I used to do that every day and I used to keep that photo upright to maintain that smile on my face. You need to fight with yourself and after a point I'm telling you it becomes easier. It literally becomes easier from being a person जिसको पढ़ाते पढ़ाते मम्मी पापा परेशान हो गए to being a person कि वो बोल रहे हैं कि बेटा रुक जा, थोड़ा रेस्ट कर ले. It's been a very interesting journey and it was not hard. जो sacrifice that we talk about, I do not think that I made any sacrifice. My parents did.
एंड सैक्रिफाइस इज नॉट समथिंग मटीरियलिस्टिक कि उन्होंने कोई ट्रिप छोड़ दिया कि कुछ छोड़ दिया. बट when my father used to come home, पूरे दिन काम करके जब कोई घर आता है तो what do they expect कि आप बैठोगे, आप आराम करोगे, आप टीवी देखोगे. मेरे घर में 10 साल से टीवी है ही नहीं. These are the little sacrifices that parents make for us. आप सब यहाँ रह रहे हैं. I studied at my home and I am lucky enough that I was born into the family जहाँ पे पढ़ाई ही सब कुछ थी. जो डाइनिंग टेबल पे जो डिस्कशन होता था वो बेसिकली डिस्कशन नहीं, खिंचाई होती थी. वो पूछा जाता था कि क्या पढ़ा आज. मैंने मिडीवल इंडिया पढ़ा आज. मिडीवल में क्या पढ़ा? मुगल पढ़ा. मुगल में क्या पढ़ा? अकबर पढ़ा. तो दीन इलाही बताओ क्या होता. दीज वर द डिस्कशंस. तो हम लोग डाइनिंग टेबल के लिए प्रिपेयर होके जाते थे. एंड पापा आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस गेटिंग टायर्ड, इवन आफ्टर दैट ही यूज्ड टू टेक क्लासेस. वो एक बोर्ड पे कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ाते थे. सो देयर वाज दिस एनवायरनमेंट दैट आई हैड गॉटन. You all are here, you have that environment. But you know, along with that, I got an emotional support. वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है because this is also a very exceptional thing that happened to me. When I got the marks of my third attempt, मतलब the mains, I had missed it by 8 marks. Not recommended लिखा था नीचे, failure लिखा था नीचे. My father sent me my mark sheet with proud of you. He sent my mark sheet with a little proud of you. Because you have done this much and it's not far. So that positivity comes from there. You know, that choosing the wolf which says hope comes from there. We have to be overly optimistic in this examination and we have to be overly trusting of ourselves in this examination. I mentioned Nanni Cheeti. Alright, you must have heard it thousands of times till now. This mains gives us a lot of opportunities to, you know, learn a lot of quotes, learn a lot of poems, learn a lot of stories. I used to love that process. I used to absolutely love that process. और जब भी मैं याद करती थी कुछ, कभी भी लिखने के लिए नहीं किया उसको. For example, under the fell clutches of circumstance, I have not winced nor cried out loud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. No matter how straight the gate, how full of punishment the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. जब मैं मेंस की तैयारी करती थी तब भी मैं ऐसे ही बोलती थी. Not for writing that. I had a vision in my head. ये होता है manifestation. This is the manifestation that we need in our life. I was remembering things not just to write in that paper, of course to write in that paper, but I did it with a different intention as well. You know? So ये जो कोशिश करना है हमारा काम, इसके वजह से इवन इन थर्ड अटेम्प्ट माय फैमिली स्टार्टेड हैविंग अ लिटिल थॉट्स. तो आते हैं सबके दिमाग में, बट आई वाज द वन कि नहीं इतना पास तो हूं मैं, 8 मार्क्स से तो छूटा है, आई विल डू इट. तो देयर वाज दिस वन लिटिल पोएम जो आई बार बार आई और उसको मैंने बहुत अच्छे से रटा. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम. बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की. प्लीज बी लाउड. It is entirely true. You have to decide which wolf you have to feed. Hope, hope and hope. Alright? With this, with a little very simple line that I really love, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है. You know what मुकद्दर is? मुकद्दर is destiny. मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. Right? Our job is to try and keep trying till we not become the best versions of ourselves. Till we do not reach where we dreamed
till we do not become the person who we want to become right now. रुकना नहीं है जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते. Now over to you. I'm very excited to listen to all of your questions, to answer all of your questions, cater to all of your questions. I'll try my level best to be able to answer all of them. What they do is they mention a lot of books, and when I try to apply it in my life, it is practically impossible. I want to know it. And secondly, please guide us through the time management, because that's the only thing that I think personally we all lack. So please guide us through this stuff, and congratulations to you. Thank you. Perfect question. Kudos to you for asking that question. इस स्पीच के बीच में ही मैंने कह दिया था मत सुनना किसी की बात. सबकी जर्नी अलग अलग होती है. Everybody has a different journey, and there are different ways to get to that journey. Whatever they're telling you what they did. And sometimes what happens is, this is actually true. Sometimes what we do is कि मान लो एनवायरमेंट के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी. I did it by the current affairs. I did it by those जो monthly magazines आते हैं. I did it by previous year questions. कि when somebody is asking you a question, तो आप उसको सबसे अच्छी चीज बताओगे, क्योंकि हमें ये ट्रस्ट नहीं होता कि क्या पता जो चीज हमारे लिए काम नहीं की वो उसके लिए काम कर जाए. So that can happen, but they also tell what I told you was not theoretical. What I told you was a state of mind that you should be. What a state of mind that you should have. What kind of approach that you should have. Now time management. I talked about time as well. Time manage करने का एक ही short तरीका है. You hold yourself down, restrict yourself. Don't go by hourly based preparation. Go by goal based preparation. Alright. Go through your syllabus each and every day. जैसे हम रोज भगवान की पूजा करते हैं. Go through your syllabus. Alright. उसको बार बार हम देखेंगे, उसको बार बार जब हम याद करेंगे, तो whenever we'll be going through the newspaper or any book or anything, we'll automatically know what we have to read and what we don't have to read. Alright. We always say that this examination is about what we do not have to read. So ये syllabus से cover हो जाएगा आपको. Time के लिए what I did, I was the worst manager of time. Worst. I could waste away hours and hours and hours in doing something really futile. So what helped me was I broke my syllabus into segments. For example, पूरे साल को break करने के बाद मेरे पास एक दिन के लिए जो target होता था वो कभी कभी art and culture का एक topic हो गया, हिस्ट्री का एक टॉपिक हो गया, पॉलिटी के 2 टॉपिक्स हो गए. एंड आई यूज्ड टू राइट देम डाउन एवरी डे. मैंने लिखा उनको और फिर बाय द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू टिक इनमें. और उसमें इट इज माय गोल्डन सजेशन टू यू ऑल. गोल्डन सजेशन. मुझे पता है आप लोगों में से 2% भी इसको मानोगे नहीं, लेकिन इसको मान के देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा टफ है. बहुत ज्यादा टफ है. बिकॉज टू बी एबल टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, what you should do is कि आपने दिन में जो भी पढ़ा, आप किसी भी स्टेज में हो आपके प्रिपरेशन के, you're preparing for prelims, you're sitting for the first time, you're sitting for the second time, you're sitting for the third time, doesn't matter. रोज जो हम पढ़ रहे हैं, by the end of the day, keep a practice session, 40 minutes का practice session, जिसमें 10 मिनट आप प्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. There are lot many quizzes. आप प्री के क्वेश्चन सॉल्व करो और 30 minutes राइट 5 आंसर्स ऑफ मेंस. कैसे? जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनका कोई भी उठा लो. आपने विजयनगर किंगडम पढ़ा तो खुद ही एक क्वेश्चन बना लो कि विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में लिखना है. आप उसको लिख दो बिना देखे. पूरा दिन खत्म करने के बाद उसको लिख दो बिना देखे. आई कैन गिव यू इन राइटिंग दैट विल बी एज्ड इन योर मेमोरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. व्हाट वी डू इज वी डू नॉट कंसोलिडेट. हम बहुत सारा पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, we forget to consolidate it. Along with managing the time, we need to consolidate कि जो इतना precious time हम दे रहे हैं इतनी जान लगा के, क्या वो दिमाग में जा रहा है. Because I realized it in my 3rd attempt कि आप कितना ही पढ़ लो और कितने अच्छे से पढ़ लो, कितनी ही शिद्दत से पढ़ लो, यहां से जो कॉपी में आएगा it's entirely different. We learn 5 things और वहां पे कोई दूसरी ही चीजें याद आती है हमको. So we have to put it into practice, and that is how you create your content. Content का स्थायी होना ऐसे ही होगा, you know.
The permanency of your content will be by this process. Inculcate a practice writing session in your day. Every day. Write it every day without fail. बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, एक दृष्टि का आता है which is so instrumental in me being here. संभव एक मॉड्यूल है या जो भी है, वो रोज क्वेश्चंस देते हैं. It gives questions every day, 3 to 4 questions. I used to write them every day. तो मेरा ये कंपटीशन चलता था कि मेरी हाइट के कितने क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं. I used to write them in papers and I used to नीचे से मैं देखती थी कि ओ इतने हो गए हैं. So you know, these are the things that you need to do and restrict yourself in a timetable. और वो टाइम ओरिएंटेड नहीं, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. आज 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, अगर वो 4 घंटे में हो गए 3 चैप्टर तो जाओ जाके मजे करो, जो करना है करो. लेकिन अगर वो नहीं हुए तो कुछ मत करो, कोई और चीज मत करो, उसको खत्म ही करके मानो. So that's how you can manage your time. Thank you. Anybody else? And please don't feel shy. हेलो मैम. Hello. Hi. फर्स्ट ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशन Thank टू you यू. so much. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को मतलब पढ़ाई करते हैं या फिर जो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर भी बीच बीच में कुछ ऐसा होता है कि यार पता नहीं कहाँ आ गए नहीं हो पाएगा. फिर कभी कभी लगता है कि हाँ हलवा है, हो जाएगा, बट कभी कभी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है और ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पाएगा. तो इससे ओवरकम हो ही नहीं पाता है, यही दिक्कत हो जाती है. बस यही आपसे जाननी थी. सबको होती है और हमेशा होती है. There's one thing that you always have to keep in mind is the timetable that I talked to him about. You know the timetable that I talked about? Restrict किया है हमने अपने आप को. हम रोएंगे इसके बाहर. जो 3 चैप्टर्स आज के हैं हमारे, उनको खत्म करो और फिर उसके बाद डिप्रेस्ड हो जाएंगे हम, उसके बाद जो भी करना है, लेकिन ये हम करेंगे. That's what I followed. कि चाहे मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा. कुछ चीजें करने के लिए हमको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा. You know, you have to force yourself every day. लेकिन इसमें what you are asking, खुद को खुश रखना भी बहुत जरूरी है. How would you do that? You cannot. आप कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं पाल सकते हो अभी. कोई सोशल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए अभी. आप क्या कर सकते हो? You can look. Along with all of this, our body is very important for us. I never left my fitness. I used to run every day. फर्स्ट रन में मर्जी से नहीं होता था तो आई नॉट टेक क्रेडिट फॉर इट. पापा धक्का देके दौड़ाते थे, लेकिन आई यूज्ड टू रन एवरी डे. तो मैं स्टार्ट रोते रोते करती थी, पर जब एंड करती थी तो काफी अच्छा लगता था. यू कैन डू समथिंग लाइक दैट. टेक वॉक्स, गो आउट फॉर अ रन, डू समथिंग एल्स, और यू नो रिवॉर्ड योरसेल्फ. अपने आप को हैवी टारगेट्स दो और फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी करो. टॉक टू योर पेरेंट्स. पेरेंट्स से बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है. टॉक टू योर सिबलिंग्स, टॉक टू योर फैमिली. तो फाइंड वेज इन विच यू कैन बी पॉजिटिव, जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपको खुश रखते हैं. यू मस्ट बी लाइकिंग डांसिंग, यू मस्ट बी लाइकिंग प्लेइंग अ स्पोर्ट. मेंटेन, ट्राई टू मेंटेन एक छोटी सी चीज, क्योंकि बॉडी, न्यूट्रिशन और बॉडी बहुत ज्यादा जरूरी है. हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ नहीं रहेगी तो कुछ मतलब नहीं है इतना सारा पढ़ने का, कोई भी मतलब नहीं. आप सक्सेसफुल हो भी जाओगे तो भी आपकी बॉडी अच्छी नहीं रहेगी तो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे उसको. विल बी वीक एवरी टाइम, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट. सो वर्क ऑन योर सेल्फ. और फिर दिमाग पे काम करना तो बहुत जरूरी है, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाई. तो मैं आपको कैसे बता दूं, मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका सबसे ज्यादा बुरा था, क्योंकि तरीका था ही नहीं. मैं मैनेज कर ही नहीं पाती थी स्ट्रेस को. डिप्रेशन से लड़ने का मेरा तरीका यही था कि मैं अपने आप को फोर्स करती थी करने के लिए. जो भी मेरा टारगेट है उसको पूरा करना है, उसके अलावा जो भी मुझे सोचना है मैं सोचती थी. लेकिन स्ट्रेस एक दूसरी चीज होती है, एंड स्ट्रेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ लॉट मेनी मैनर्स. मेरी आंखें फूल जाती थी. हर 4 प्री दी है मैंने, 4 प्री के पहले मेरी दोनों आंखें स्वेल हो जाती थी. मेंस के पहले मुझे ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. मेन प्री के पहले एक भी दिन मैं सोई नहीं हूं, एक बार भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई है. ऑल स्ट्रेस. लास्ट तक मैंने मान लिया था होगा, देख लेंगे, कोई बात नहीं. लेकिन मेडिटेशन कहा जाता है कि इज अ वेरी नाइस वे टू काम योरसेल्फ. अब मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे अपने आप को काम करने का, बिकॉज मेरा दिमाग भागता रहता है हमेशा. इट्स नॉट काम एट ऑल. तो आई एम वर्किंग ऑन दैट. यू वर्क ऑन दैट टू, एंड बी कॉन्फिडेंट, बी ऑप्टिमिस्टिक, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक. कि हमेशा ग्राफ हमारा ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चल सकता है हमेशा.
क्योंकि अगर यहाँ पहुंच गए तो बहुत नीचे गिरोगे। ऐसे 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 चलना चाहिए। यू विल हैव हाईज, यू विल हैव लोज, यू विल हैव हाईज, यू विल हैव लोज, और इन लोज की वजह से ही हाई आता है हमारा। अगर एक दिन आपका बिगड़ेगा नहीं ना, तो आप अगले दिन मेहनत से स्टार्ट नहीं करोगे। स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है हमको, और एक्सेप्ट करना है कि बहुत लंबी जर्नी है। एज आई टोल्ड यू, इट्स एन अनकंफर्टेबल जर्नी। यू हैव टू लर्न बीइंग कंफर्टेबल, you have to learn to be comfortable being uncomfortable. All right, so try to be happy. Talk to your friends, talk to the people who are beside you, talk to your family. Try to be optimistic. Thank you. First of all, congratulations, ma'am. Thank you. And I would like to ask one question related to the optional subject, which most of the students face during their preparation, as well as right now I am also facing. I'm very confused about the optional part, that what should I choose. It is sociology is a high scoring subject, so you should go with that. No, if you are interested in history, like I have interested in history, so what should be on that stage, so what should be choose related to that. Are you interested in history? Yeah, I have interest in history. Have you gone through the syllabus of history? Once I have gone through. Did you like the syllabus? Yeah, I have liked. Did you feel that you won't be able to do it? No, I didn't feel that I. Yes or no? Yes or no? No, I thought I would be able to do, but. Take history. That's what you should do. ठीक है? दो उसमें है, एक इंटरेस्ट है और एक डूएबिलिटी है। हम कैसे देखते हैं? फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट वी आर इंटरेस्टेड इन, उसके बाद उसका सिलेबस हमको देखना चाहिए। देन यू आर सेइंग दैट यू हैव सीन, कभी कभी ऐसा, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत पढ़ के पॉलिटी का जोश आ गया था मुझे, बिकॉज मुझे लगा था कि पॉलिटी ही लूंगी मैं। लेकिन जब मैंने पॉलिटी का सिलेबस देखा तो आई फाउंड आउट कि लक्ष्मीकांत इज नॉट द एंटायर पॉलिटी, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ पॉलिटी। इवन द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ इट। बहुत सारा है, बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारी चीजें होती है पॉलिटी में। सो इफ यू गॉन थ्रू द हिस्ट्री सिलेबस एंड इफ यू थिंक दैट इट इज डूएबल, क्योंकि वही तो है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। बोलते हैं बहुत वास्ट है, मेरा खुद का हिस्ट्री था, लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा हिस्ट्री इसीलिए था क्योंकि पापा ने बोला। मैं तो पॉलिटी लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं नहीं तुम हिस्ट्री लो, एंड नाउ आई एम अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज हमको रिटर्न भी देखना चाहिए सब्जेक्ट से। सोशियोलॉजी इफ यू टेक, मतलब आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑप्शनल ऑफ सोशियोलॉजी, लेकिन हिस्ट्री में व्हाट आई टेल यू हाउ इट हेल्प्स। आई एम टॉकिंग टू यू स्पेसिफिकली, क्योंकि उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, और जिनको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ये उनके लिए है। ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री का ऑप्शनल तो है। उसके अलावा व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हैपेंड इन द पास्ट इज हिस्ट्री। ऐसे का पेपर, आपके पास हमेशा स्टोरीज होंगी, हमेशा एनेक्डोट्स होंगे लिखने के लिए, आपके पास हमेशा पर्सनालिटीज के नेम्स होंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फॉर्डर टू राइट। आपका ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ सक्सेस, ऑफ फेलियर, ऑफ नए नए एक्सपेडिशंस, अजीब अजीब चीजें जो कि हिस्ट्री में हुई हैं, की गई हैं। यू विल हैव ऑल ऑफ दैट इन योर माइंड एंड यू कैन यूज दैट इन योर ऐसे ब्यूटिफुली। इसके अलावा लेट्स कम टू फर्स्ट पेपर, मेजर चंक हिस्ट्री, GS 1, 2, 3 अभी छोड़ देते हैं, अभी के लिए छोड़ देते हैं, फोर्थ में आते हैं। एथिक्स का जो पेपर है, व्हाट इज इट? इट इज आस्किंग यू अ लिटिल थियरी, उसके अलावा इट इज आस्किंग अबाउट योर व्यूज, हाउ डू यू फॉर्म योर व्यूज। If you know your past, you are able to know your future better, and you are able to answer all of these questions better. You will have a lot more examples to write in your answers. Alright? मेरा ethics का जो पेपर होता था वो कोट से स्टार्ट होता था, हर क्वेश्चन कोट से खत्म होता था, और उसमें हमेशा कोई ना कोई एग्जाम्पल होता था। A little anecdote of Mahatma Gandhi going to a place, a little anecdote of Martin King Luther Jr. giving a speech, I have a dream. Remembered it all because I was a history student. हिस्ट्री तक पहुंचे तो रिटर्न देखो। ऑलराइट, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू थिंक द सिलेबस इज डूएबल, रिटर्न बहुत अच्छा है, गो फॉर हिस्ट्री। थैंक यू। What I did was I did my optional first. पहले ऑप्शनल किया मैंने पूरा 3 महीने देख के, नहीं किया GS उस टाइम पे।
लेटर देन आई सैट फॉर जीएस का प्रेपरेशन किया, लेकिन जब मेंस जब होता है, इफ यू आर आस्किंग मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आई हैव 3 months फॉर मेंस, तब बैलेंस करने की बात आती है. तो आई यूज्ड टू हैव स्लॉट्स, राइट, आई यूज्ड टू हैव अ बिग स्लॉट फॉर हिस्ट्री एवरी डे, for a 3-4 hour slot for history. Then I would have a slot for GS 1, 2 and 3. सबका स्लॉटिंग होता था, तो GS 1, 2, 3 के पास थोड़ा कम टाइम आता था, और बाई चांस मुझे ऐसा लगता था कि सिलेबस एक का थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैं फिर 3 ही स्लॉट्स रखती थी, लेकिन हिस्ट्री तो रोज रहता ही था उसमें, बिकॉज यू हैव टू. लेकिन यू शुड हैव बेटर कमांड ऑन योर सब्जेक्ट. मुझे ऐसा लगता है कि जितना कमांड मेरा हिस्ट्री पे था, उससे बेटर आपका आपके ऑप्शनल पे हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस प्री का जंजाल ना, आई लॉस्ट दैट परफेक्शन दैट आई शुड हैव हैड. क्योंकि प्री में इतना फंस जाते हैं कि पास होने के लिए हम पूरे साल प्री ही पढ़ते रहते हैं. फिर दैट शुड नॉट बी द पैटर्न. सबकी पढ़ाई एक ही है. आंसर जो मैंने बोला कि 1 घंटे का आंसर राइटिंग सेशन, वो आपके दिन में रहना ही चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द टाइम्स दैट हम बहुत सोच के पढ़ाई करते हैं, जैसे 2 months बिफोर प्रीलिम्स, तब मत करो, तब वो 1 घंटा मत दो. लेकिन उसके अलावा पूरे साल यू नीड टू गिव दैट टाइम. ऑलराइट, एंड व्हाट यू आस्क्ड वाज हाउ टू मेंटेन द बैलेंस, स्लॉट योर डे. कि हमने एक चंक हिस्ट्री को दिया, सॉरी आपके ऑप्शनल को दिया, और इसके अलावा अपनी GS 1 जहां पे भी आपको नीड है उसके बेसिस पे दिया. और GS में माय सजेशन वुड बी टू गो बाय द सिलेबस. बहुत ज्यादा अपने लिए समेटने की जरूरत नहीं है, बटोरने की जरूरत नहीं है. गो बाय द सिलेबस, गो बाय ईच एंड एवरी पॉइंट. What I used to do is I used to have different introduction and a conclusion for each and every head of the topic. ये मैं लास्ट के 3 months में करती थी मेंस के. This you do and then you're good to go. Slot your day. Thank you. कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. अगर एक दिन से हमारी जिंदगी डिसाइड हो जाती, तो मैं तो यहाँ हो ही नहीं सकती थी. I was the most notorious kid in my school. I recently went back to my school. I can't tell you the expressions. Of course, they were very happy. लेकिन मुझे पता था कि इनको पता है कि इससे कुछ नहीं होगा. तभी उन्होंने सोच लिया था कि इससे कुछ नहीं होगा. Because I was a different kind of person, not studious at all. I had the potential, but didn't study that time. तो 1 साल नहीं डिसाइड करता है कि आप कौन हो और आप क्या आगे जाके कर सकते हो. जो डिसाइड करता है, it is the hard work which you put in the day you decide what you want to become. Alright, today have you decided what you want to become? So the things that you have done before that does not matter at all. Do not matter at all. They do not. आज से जो आप करोगे, आज से जितना आप टाइम दोगे, आज से जितनी शिद्दत से आप पढ़ाई करोगे, उसके लिए जो आप चाहते हो, only that matters. Keep that in your head. Thank you. अगर आप 1 month लगातार लिखते तो अभी तक आपको एक डाउट नहीं रहता. बिकॉज यू नो विद आंसर राइटिंग द इंटरेस्टिंग थिंग इज, पहले दिन किसी को नहीं आता, पहले दिन लगता नहीं हो पा रहा है हमसे, होगा ही नहीं. लेकिन हम रोज लिखते जाते हैं. आप बहुत ही गंदा आंसर लिखो, जैसे कि वी हैव स्टडीड टिल 1st to 12th तो पढ़ा है हमने, ग्रेजुएशन कर लिया है, कुछ ने कर लिया है, कुछ ने नहीं किया है, लेकिन कुछ तो है हमारे दिमाग में. कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे यूपीएससी, कोई भी क्वेश्चन आया हो, उसका एक ही वर्ड तो हमको आता ही है. लेकिन होता यह है कि वी कांट राइट दोज, बिकॉज हम हिम्मत ही नहीं जुटा पाते उसको लिखने की. इफ यू राइट एवरी डे, चाहे गंदा लिखो, एकदम खराब लिखो, आप ही तो पढ़ रहे हो उसको, nobody else is reading it. You will be surprised how good you will be in 10 days. Alright, तो आंसर राइटिंग का तरीका यही है कि आप लिखो, क्योंकि when the answer you write on the first day and the answer you write on your 15th day and the answer you write on your 30th day, दिन रात का फर्क होगा. पहली बार जब आप लिखोगे ना, बॉडी होगी उसकी, कुछ नहीं होगा, ना इंट्रोडक्शन होगा ना कंक्लूजन होगा. एंड one more suggestion, what you should do is कि for example if you're taking 4 to 5 questions to write, all right, उन क्वेश्चन को हमने वर्कबुक फॉर्मेट में लिखा और 15 minutes लो और एक बार वापस पढ़ लो उनके आंसर्स को, पढ़ लो एक बार वापस, गो थ्रू द की पॉइंट्स कि ये की पॉइंट्स मुझे याद रहेंगे, एक पेज तो लिख ही दूंगी, उतना उसको पढ़ लो तुरंत पहले. लेकिन एक बार जब आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो, तब उसको साइड में रखो और फिर लिखना स्टार्ट करो, और कुछ तो याद रहेगा, नहीं होगे ब्लैंक आप.
सेकेंड डे यू विल नो कि कल का जो आंसर लिखा था उसमें इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं आ रहा था, थर्ड डे वो थोड़ा बेटर हो जाएगा, फोर्थ डे वो और बेटर हो जाएगा, 10th डे वो परफेक्ट हो जाएगा। बॉडी मैं पूरा कचरा कचरा कर रही हूँ इस बॉडी में, ये अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे दिन अरे यार मेरे सारे थॉट्स मैं नहीं डाल पा रही हूँ इसमें, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स, लेकिन मैं उसको कंक्लूड नहीं कर पा रही हूँ इसमें। थर्ड डे आप ऑटोमेटिकली फ्लो चार्ट में आ जाओगे, यू नो दिस इज द वे आई कैन शो माई आंसर इन अ बेटर मैनर। अगर हमको भक्ति मूवमेंट दिखाना है तो एक तो हम लिस्ट बना के लिख दें और एक हम मैप बना के बता दें कि यहाँ पे मीराबाई, यहाँ पे कबीर, यहाँ पे ये, तो इतना जब हम बता देंगे तो आसानी हो जाएगी हमको। तो दिस यू विल ओनली लर्न बाय राइटिंग द आंसर्स एक्चुअली, और उसमें यू कैन रेफर टू दैट अदर आंसर शीट्स जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे, यू कैन गो थ्रू दोज आंसर शीट्स और उनसे आइडिया मिलता रहता है, एक आइडिया मिलता रहता है और उसको कॉपी कर करके हम सीखते जाते हैं। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर आप लगातार अभी तक प्रैक्टिस कर रहे होते तो यू वुड हैव गॉटन इट अभी तक, राइट? एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम गेट दोज आंसर्स चेक्ड, और उसकी भी पता है कोई जरूरत नहीं होती है, बिकॉज यू विल नो इफ वेदर आई एम राइटिंग अ गुड आंसर और नॉट। 30 days तक लगातार लिखो एंड आई एम अश्योरिंग यू विल बी परफेक्ट बाय द 30th day। उसके बाद सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात रहेगी, लेकिन तब भी प्रैक्टिस करना बंद मत करना, यू हैव टू प्रैक्टिस। सब 12th पास किए हुए बच्चे हैं यहाँ पे? ऑलराइट Ma'am, everyone said that is too early. I am from my first year of graduation. I start preparation, but everyone, my parents and relatives say कि भूल जाओगे 3 years first attempt के लिए। अभी किसी ने सेम क्वेश्चन पूछा था, कुछ फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या बोलेंगे, कोई भी कुछ भी क्या बोलेगा, बस भूलना नहीं। देखो उसमें ये है कि आप अभी से गलत चीजें पढ़ना स्टार्ट करोगे। इफ यू स्टार्ट रीडिंग मैगजीन्स फ्रॉम टुडे ओनली, हमने एक मैगजीन उठा लिया करंट अफेयर्स का, वो कोई काम का नहीं है अभी आपके लिए। जो भी आपके सब्जेक्ट्स है ग्रेजुएशन में, वो सब्जेक्ट्स आर यू डूइंग योर ग्रेजुएशन? BSc PCM स्टूडेंट। ऑलराइट। तब भी उसके अलावा भी इफ यू वांट टू परस्यू UPSC, आप थोड़ा थोड़ा जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरनमेंट, और जो भी सारी चीजें हैं, इनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लेते चलो। जैसे एक NCERT की बुक उठा ली, ज्यादा नहीं किया, अब आप पूरा ढेर लेके बैठ जाओगे तो आप उसको कर भी नहीं पाओगे, याद ही नहीं होगा, भूलोगे कैसे, कर ही नहीं पाओगे अभी आप उसको। तो टेक अ लिटिल टारगेट अभी के लिए। BSc करना है बहुत अच्छे से, उसमें लैग मत करना, लेकिन छोटा छोटा टारगेट हम लेंगे कि मुझे इन 15 दिनों में ये एक छोटी सी NCERT खत्म करनी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक खत्म करनी है, इसको समझना है, ये वाला सॉल्व करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। तो अब धीरे धीरे करके करते जाओ, ऑलराइट? कुछ नहीं भूलोगे, आप उतना पढ़ ही नहीं पाओगे भूलने लायक। अभी है जोश, वो नहीं रहेगा 10 दिन बाद, तो मेंटेन दैट जोश कैसे, थोड़ा थोड़ा कर। ऑलराइट, थैंक यू। बहुत सारे बुक्स देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, फिर ये रिवीजन हुआ, ये छूट गया, वो छूट गया। और मतलब कभी कभी इन सब चीज़ों में GS का ध्यान रखो, फिर ऑप्शनल का भी ध्यान रखो, फिर करंट अफेयर्स भी छूट जाते हैं, वो जो मैगजीन्स होते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी छूट जाते हैं, तो इन सबको मैनेज नहीं हो पाता। फिर ऐसा लगता है कि ये मतलब GS के और भी सारे बुक्स छूट गए, ये थोड़ा मतलब टेंशन हो जाती है। वो जो 1 घंटा मैंने बोला ना, अगर आप वो करना स्टार्ट कर दोगे, ये सब कुछ नहीं होगा। जो छूटता है उसे छूटने दो, इतनी सारी चीजें करनी है हमको, कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। इफ यू आज 10 टॉपिक पढ़ना जरूरी नहीं है, अगर आज आपने 3 टॉपिक्स पढ़े, आर्ट एंड कल्चर का एक चैप्टर पढ़ा, पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ा, और कुछ एक चीज की आपने, और इन तीनों चीजों के बारे में आपने 2-2 क्वेश्चंस लिख लिए, यू आर गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और धीरे धीरे करके यू नो the solution to all your problems is learning to manage your time. अपने आप को बांधो उस टाइम में, ऑलराइट? टारगेट्स, टेक टारगेट्स फॉर योरसेल्फ। 100 टारगेट्स मत लो एक साथ कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। 1-2 चीज डिसाइड कर लो कि ये करनी है। इफ फॉर एग्जाम्पल what are you studying right now? क्या टारगेट है अभी? मतलब जैसे हमारा लेक्चर होता है, मेरा एक सुबह में लेक्चर होता है साइंस एंड टेक का, फिर दोपहर में इकोनॉमी का होता है, और शाम को ऑप्शनल का होता है।
तो ये तीनों लेक्चर उससे होते हैं, उसके बाद जाके रिवीजन करता हूँ, तो मतलब कुछ चीज़ें याद हो जाती है। फिर इन रिवीजन करने के टाइम उसके बाद से करंट अफेयर्स को भी टाइम नहीं मिल पाते हैं। और भी बुक्स देखता हूँ कि मतलब पॉलिटी जो पहले हो चुका है वो छूट गया, उसका रिवीजन नहीं हुआ। फिर आई चोज टू मेक माई ओन वे। उसमें मैंने तो यही किया कि आई यूज टू चूज माई ओन सब्जेक्ट, कि अभी मुझे ये पढ़ना है, अभी मुझे ये खत्म करना है, क्योंकि जब हम इतने सारे डायरेक्शंस में भागते रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो अभी एक काम करो कि जो साइंस एंड टेक आप कर रहे हो उसके नोट्स बना लो, एग्जाम जो क्लास में हो अच्छे से सुन लो, लेकिन उसको उतना ज्यादा ध्यान मत दो। अभी नोट्स बना के ध्यान दे के अभी उसको रख दो। जो भी एक सब्जेक्ट इनमें से आप उठा रहे हो, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो। अगर आप इतनी सारी चीज, क्योंकि आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। देयर आर सम पीपल हु रीड ओनली वन सब्जेक्ट फॉर 3 days स्ट्रेट, खत्म कर दिया उन्होंने। कुछ लोग होते हैं जो 3-4 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हैं और उनको फिर 15 दिन में खत्म करते हैं। ऑल राइट, द सेकेंड वन और द फर्स्ट वन? सेकेंड वन। ऑल राइट, तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि इतने सारे डायरेक्शंस में नहीं भागना है आपको। एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आप अभी चूज कर लो कि इन्हीं सब्जेक्ट्स पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। हो जाएगा साइंस एंड टेक, वो हो जाएगा बाद में। करंट अफेयर्स की जब मैगजीन्स पढ़ोगे तो वो उसके साथ हो जाएगा। और आपके नोट्स अच्छे बनाओ अभी, ताकि इन्हीं नोट्स पे बार बार आप जाते रहो और इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो। रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100 चीजें पढ़ना और एक चीज को 100 बार पढ़ना, दूसरा वाला ज्यादा जरूरी है। दूसरा वाला ज्यादा, चाहे वो चीज अच्छे, ये नोट्स कैसे भी बने, आप इनको भी अगर 100 बार पढ़ोगे वो रट जाएंगे आपको ऐसे कैसे। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। एंड सिलेक्ट अ सब्जेक्ट। जैसे जो इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है आपका, तो इकोनॉमिक्स को एंटायरिटी में करो। इकोनॉमिक्स का जो भी आपका सोर्स है, इकोनॉमिक्स को अभी खत्म करने की कोशिश करो और इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। साइंस एंड टेक को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो अभी। तो 2 सब्जेक्ट जैसे आपका जो ऑप्शनल है और जो इकोनॉमिक्स है, इन दोनों पे ध्यान देने की कोशिश करो अभी। जब जो कर रहे हैं अगर उसको हम अच्छे से करेंगे तो विल बी गुड टू गो। और मैम जो मतलब पहले जो सेगमेंट हो चुका है, जो लाइक पॉलिटी हो चुका है, तो उसका एक बार रिवीजन किया था, लेकिन फिर थोड़ा बहुत चीज़ें भूल गई, थोड़ी बहुत याद रहती हैं। नोट्स लेके आना। हाँ, नोट्स लिखे हैं। कोई बात नहीं, उन नोट्स को मत छोड़ना, उनको पढ़ते रहना। वापस पढ़ो 2 बार में कोई चीज याद नहीं होती है, 5-6 बार तो वैसे भी आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मतलब ये सजेस्ट किया कि मतलब जैसे अपना एसे है, एथिक्स है और ऑप्शनल है, ये 4 सब्जेक्ट मिला के मतलब 1000 मार्क्स होते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो, जीएस को थोड़ा कम फोकस करो। देखो, फोकस तो सब पे होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जैसे इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है जीएस 1 to 3 में। जीएस 1 to 3 में क्या होता है कि 1 और 2 का सिलेबस कंपैरेटिवली 3rd से कम है। 3rd में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे। तो 3rd की तैयारी करते करते 1st और 2nd की मिला के तैयारी होती है, लेकिन मार्क्स तो उतने ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 3rd में बहुत वेस्ट अवे मत करो अपने आप को। तो वो जो बात आप बोल रहे हो वो इसीलिए कही जाती है, वो सिर्फ एक रीजन की वजह से कही जाती है क्योंकि लोग उनको हल्के में ले लेते हैं। एथिक्स है, आसानी से हो जाएगा, ऐसे है लिख देंगे, अरे यार कुछ भी लिख देंगे। वो अप्रोच नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जीएस पे ध्यान मत दो, जीएस पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या लिखोगे जीएस में नहीं लिखोगे तो। और अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से करोगे तो आपको सब ऑटोमेटिक होगा। किसी भी चीज पे कम ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सब चीजों पे इक्वली ध्यान दो। बस ऐसा मत करना कि किसी भी चीज को लाइटली ले लो। और उन्होंने ये भी बोला था मतलब जैसे कि प्री के लिए ज़्यादा मतलब ये करंट अफेयर्स ले लेना और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर लेना, या करंट अफेयर्स, इन सब से तो प्री निकल जाए। वैसे ही निकलता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से निकलता है। प्री क्वेश्चन सॉल्व करने से निकलता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या हो, मैंने अपने 1st-2nd अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी। 2nd अटेम्प्ट में जब मेरा 2 मार्क्स से छूटा था तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन बहुत देर बाद दिमाग की बत्ती जली थी कि यार क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि 1-2 पेपर्स हमने कर लिए, 3-4 पेपर्स हमने सॉल्व करके देख लिए। और उनको भी, पेपर्स को कभी भी मार्क्स के लिए सॉल्व मत करो। जो भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं, इफ यू आर सॉल्विंग देम टू सी वेयर यू स्टैंड, कोई मतलब का नहीं है वो, बिकॉज द पेपर विच इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन विल बी इंटायरली डिफरेंट। उससे आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है, कुछ भी नहीं। ये जो पेपर्स हम करते हैं ये होने चाहिए हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए और क्वेश्चन सॉल्विंग सीखने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है, जिनके लिए वी नीड टू अप्लाई सम ऑफ आवर कॉमन सेंस इन दोस क्वेश्चंस।
तो ये पेपर सॉल्व करने से हमको वो कॉमन सेंस मिलता है, वो सेंस मिलता है कि हम सॉल्व कैसे करें क्वेश्चन को, प्लस नॉलेज मिलती है. आई यूज्ड टू सॉल्व एटलीस्ट 30 + 30 + 30, oh my god, 60-70 पेपर्स बिफोर एवरी प्री. मतलब एवरी प्री मतलब वो जो 3 महीने होते हैं उसमें आई यूज्ड टू सॉल्व दोज पेपर्स. मार्क्स तो मुझे याद भी नहीं है उनमें कितने आते थे, मैं देखती भी नहीं थी बहुत ज्यादा. आई यूज्ड टू सॉल्व द पेपर, कर लिया उसको सॉल्व, आई यूज्ड टू जंप टू द सॉल्यूशन. एक क्वेश्चन में, क्योंकि नाउ द क्वेश्चंस दैट वी गेट इन यूपीएससी एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो 10 क्वेश्चन क्लब्ड इन 1 क्वेश्चन होता है. वो एक स्टेटमेंट, उसके 5 स्टेटमेंट्स और फिर उसके साथ 4 ऑप्शंस, सब अलग अलग हुए. अगर आप ऑप्शंस में 1 2 3 नहीं कोई नाम है तो वो भी अलग अलग क्वेश्चन बन गए. और ये सब सोल्यूशन में रहता है. आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर उठा लीजिए, सब सोल्यूशन में रहता है. तो आई यूज्ड टू अबाइड बाय दीज सॉल्यूशंस. तो मैं इस सोल्यूशन को अपने क्वेश्चन पेपर में धीरे धीरे नोट कर लेती थी कि दिस इज नॉट ट्रू, तो अगर वो नॉट है तो नॉट को काट दिया वहां पे, अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वहीं पे लिख दी उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को. और लास्ट में मेरे पास इतना बंडल होता था सिर्फ पेपर्स का, मैं उन्हीं को रिवाइज करके जाती थी, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, मेरे लिखे हुए पेपर्स हैं. तो बहुत भंडार हो जाता है दिमाग में इंफॉर्मेशन का. करंट अफेयर्स भी उससे कवर होते हैं हमारे, और वी अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. इसीलिए जो भी लोग बोलते हैं, जो प्री पास करते हो, यही बोलते हैं पेपर सॉल्व कर लो आप पास हो जाओगे. लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की, और वो इंटेंसिटी मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, लर्निंग ओरिएंटेड होनी चाहिए. सोशल मीडिया से भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है. देखो, अगर सोशल मीडिया आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है तो छोड़ दो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. हाँ तो छोड़ दो, थोड़ी तकलीफ होगी पर लीव इट, सब छोड़ते हैं. फिर जब आप बन के बनाओगे ना अपनी प्रोफाइल, बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू मैम. You'll get a lot of recognition after that. थैंक यू वेरी मच. Thank you. So if you've decided in choosing English as your medium, भाषा बहुत ही सिंपल सी चीज है, सीखी जा सकती है. आप कंटेंट पे ध्यान दो, आप आंसर राइटिंग करो, ये जो फिलर वर्ड्स हैं वो खुद ही आते जाएंगे. आपको उन पे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस आपको ये करना पड़ेगा कि देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू इन दैट. मेरी भी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं थी, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं जब भी कोई नया वर्ड सुनती थी या जब भी कोई नया वर्ड पढ़ती थी, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक हाउ आई कैन यूज इट इन माय कन्वर्सेशन विद समबडी. हमेशा मैं एक बार जब आप उसको दिमाग में सोच रहे हो कि मैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज करूंगी इन माय एवरीडे लाइफ, तो वर्ड आपको याद रह जाता है. ऑलराइट, सो स्टार्ट बीइंग अट्रैक्टेड बाय द वर्ड्स, फॉल इन लव विद द लैंग्वेज. वो करोगे तो आपको खुद याद रहेगा. और फिर अगर वो नहीं भी कर पाते हो, आप अपने कंटेंट में आगे बढ़ते जाओ, आप पढ़ते जाओ और आप आंसर लिखते जाओ, आपको ऑटोमेटिक खुद बनता जाएगा वो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. यू कैन राइट प्रॉपर्ली, राइट, यू कैन राइट, तो इट विल बी नो प्रॉब्लम. आप बस पढ़ते जाओ और थोड़ा ज्यादा ध्यान दो शब्दों पे. यू नो द न्यू वर्ड्स दैट यू सी, वो याद भी हमारे जैसे लोग को ज्यादा होते हैं, बिकॉज वी फोकस ऑन दोज वर्ड्स. फिलर वर्ड्स आप कम यूज करोगे और उन शब्दों को आप ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको याद भी ज्यादा रहेंगे. विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी प्रोफेशनली, यू विल बी वेरी प्रोफेशनल इन योर लैंग्वेज. और अभी तो हमको लिखने से मतलब है, तो प्रैक्टिस करते रहो, विल बी फाइन. थैंक यू. प्लान बी का नहीं पता, सेफ्टी रहनी चाहिए. प्लान बी तो होना ही नहीं चाहिए. प्लान बी अगर होगा तो आप उसके बारे में सोचते रहोगे, लेकिन प्लान बी और सेफ्टी में फर्क है. देयर इज दिस एग्जामिनेशन कॉल्ड एसएससी, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. यूपीएससी का भाई है छोटा. मैं एक जॉइंट फैमिली में रही हूँ जहाँ पे मेरे कजिन्स एसएससी का प्रिपरेशन करते थे, तो उन्हीं के साथ मुझे भी पापा बिठा देते थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी. तो आई वाज 16 व्हेन आई वाज डूइंग दिस. तो 16 17 2-3 साल मैंने किया. तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये पेपर्स वो 200 क्वेश्चंस के पेपर्स आते थे उस टाइम. आई यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दोस. तो वो करते करते मैं एक पॉइंट पे आ गई दैट आई स्कोर्ड 195 अप टू 200 इन इंग्लिश इन एसएससी. तो कभी मुझे सबसे ऊपर वाला जॉब नहीं मिलता था एसएससी में, लेकिन मुझे ऑडिटर वाला हमेशा मिल जाता था. तो घर में ये हमेशा रहता था कि कुछ ना कुछ तो करने की, सैलरी तो आ जाएगी मेरे पास. तो वो एक सेफ्टी क्वेश्चन था. तो सेफ्टी आपके पास हमेशा होनी चाहिए, बिकॉज यू कांट वेस्ट अवे. हम वेस्ट अवे नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर आपको अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है तो वो रंग भी लाएगी. यू विल बी एबल टू क्रैक इट.
लेकिन सेफ्टी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज, ये जो एसएससी करने की वजह से एक जो चीज मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ, मुझे सीसैट के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ा। आई नेवर हैड टू थिंक अबाउट सीसैट। अभी मुझे काफी बाद में पता चला कि सीसैट के लिए बहुत जोरों शोरों से पढ़ते हैं और कोचिंग होती है। आई तो थॉट इट वाज वेरी इजी काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन वो इजी नहीं था। मैं उसकी प्रैक्टिस पहले ही कर चुकी थी। जब एसएससी के लिए पेपर्स में सॉल्व कर रही थी तो इट वाज ऑल सीसैट। सीसैट में वही आपको पूछ रहा है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन, एंड द थर्ड वन इज रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सब करते करते हो जाता है। नाउ यू विल हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। ये मेरा पहले ही हो गया था। तो कभी कभी जो हमारा सेफ ऑप्शन रहता है उसके फायदे भी हो जाते हैं। तो ऐसा सेफ ऑप्शन ढूंढ लो जो कि मर्ज होता हो इससे। नहीं तो एक दो बार तो अच्छे से कोशिश करके दो, उसके बाद अगर सोचना पड़े तो फिर सेफ ऑप्शन के बारे में सोचना। प्लान बी मत रखो, सेफ ऑप्शन रखो कोई। या यस यू बोला। एनसीईआरटी आप ना कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो बहुत सारी एनसीईआरटीज तो मैंने पढ़ी ही नहीं। तो यू नो देयर इज नो शॉर्ट तरीका ऑफ एनीथिंग। कुछ भी शॉर्ट नहीं है। अगर आपने सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली, ये सब कर लिया, लेकिन द क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी कि सारी एनसीईआरटीज कैसे पढ़ें, तो आप चूज कर लो कि कौन सी एनसीईआरटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। सब सब्जेक्ट्स के लिए एक एक से ज्यादा मत करना, ठीक है। और वो भी काफी होती है। तो अच्छी सी प्यारी सी किताब है, छोटी सी किताब है, गो थ्रू इट और उसका टेस्ट लिख दो। आप जो अगर आपने एक चैप्टर पढ़ के उसके पीछे जो क्वेश्चन होते हैं उनको लिख लिया अगर, तो दैट एनसीईआरटी इज डन फॉर यू। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मतलब कोई शॉर्ट तरीका नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा। वॉट एवर यू चूज, उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि उस बुक से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे दो। ऑलराइट, हर बुक को पढ़ने का यही तरीका है कि उसके आप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व करो। अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के लिए और इजी होता है, बिकॉज एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं। हर चैप्टर पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन को लिख लो मेंस पैटर्न पे, ऑलराइट, देन यू विल बी गुड टू गो। जैसे मैम आपने बोला कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, मुझसे भी न्यूज़पेपर नहीं होता है। मैंने 2 महीना देख लिया। मैं आपकी तरह ही वीडियो एनालाइज करती हूँ डेली बेसिस पे। तो अगर आपने बोला था कि एथिक्स और ऐसे के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो मुझे कब से शुरू करना चाहिए न्यूज़पेपर? क्योंकि मैंने देख लिया मैं करंट अफेयर्स नहीं कर सकती। ऐसे और एथिक्स के लिए भी मैं न्यूज़पेपर नहीं, मतलब वो दूसरे पॉइंट पे था कि आप एडिटोरियल्स रोज पढ़ो। जो एडिटोरियल्स होते हैं ना उनको रोज पढ़ो, क्योंकि दे ओपन अप योर माइंड। They open up your mind for various perspectives. They open up your mind कि लोग सोच क्या रहे हैं। Because when we see the video and when we read an analysis, उसमें क्या होता है, वो बस आपको फैक्ट बताता है। फैक्ट व्यू नहीं बताता है। No, there's some people who really enjoy newspaper reading. क्यों वो एंजॉय करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग को? क्योंकि वहां व्यू पता चलता है। आप हिंदू का कोई अगर कोई एडिटोरियल पढ़ोगे तो वो एक तरफा होगा, कभी कभी बैलेंस्ड होगा, कभी कभी एंटी इंस्टीट्यूशन होगा, कभी कभी प्रो इंस्टीट्यूशन होगा। तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको वो भी पता होना चाहिए, बिकॉज जवाब देना है ना, आगे जाके उसी फील्ड में आना है आपको, यही काम करना है आपको। तो न्यूज़पेपर से परहेज नहीं होना चाहिए। हमको करंट अफेयर्स करना है। उसके लिए आपका क्वेश्चन था कि कब से आपको एडिटोरियल वगैरह के लिए स्टार्ट करना है। तो एडिटोरियल्स तो अभी से पढ़ो, वो पढ़ने में अच्छा रहता है। और उसके अलावा मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो आपको ये जो बाकी चीज है उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसको रिलीजियसली करो। किसी भी चीज को करने के लिए हमको सिर्फ कंसिस्टेंसी की जरूरत है, सिर्फ कंसिस्टेंसी की। आप न्यूज़पेपर छोड़ के वीडियो स्टार्ट कर दोगे और वीडियो में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे अगर, तो फिर वो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी हमको। वो मत करना। वॉट एवर यू चूज, वॉट एवर वे यू चूज, जस्ट बी कंसिस्टेंट इन दैट वे। ऑलराइट, एक लास्ट क्वेश्चन था। जैसे आपने फैमिली के साथ प्रिपरेशन करी है, मैं भी अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरा क्या होता है ना कि वो कुछ कर रहे हैं तो फटाफट मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ। अभी करती हूँ पढ़ाई अपने आप को ऐसे बोल के, और फिर वो मेरा आता ही नहीं है। समझ गई? You can talk to me for hours and hours and hours. I'm the most talkative person I think on this face of earth. इतनी बात करा लो मुझसे, मैं चुप ही नहीं होती। And being in a family, I am very loved in my family. Everybody loves to talk to me. उस फैमिली में रह के, बट आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी एक्सेप्शनल फैमिली। अगर मैं बैठी दिख गई कहीं ऐसे ही बात करते हुए, चलो भगो यहाँ से, वो होता था। तो आई गॉट दैट एनवायरमेंट इन माई फैमिली।
आई डोंट नो इफ यू हैव दैट और नॉट। जब आप एग्जाम देते हो तो सिर्फ आप अकेले एग्जाम नहीं देते हो, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ एग्जाम देती है। जो आपका मेंस का पीरियड होगा उसमें सब ऐसे भूत बन के बैठे रहेंगे जैसे कि कुछ रुक गई है जिंदगी। जब आपकी प्री होगी उसके 3 महीने पहले सबका टाइम रुक जाएगा। इट हैपेंस इन द हाउस। वो प्लस एंड माइनस प्रॉपर होते हैं। आप बस एक ऐसा कोना ढूंढ लो जहां पे आप बैठ के पढ़ सकते हो। बोल दो सबको कि अभी मैं लॉक कर रही हूं और अभी मैं पढ़ रही हूं, शोर मत करना, ठीक है? और वो समझ जाएंगे बिकॉज आवर फैमिली लव्स अस अनकंडीशनली। तो वो कर लेंगे और उनके साथ उनको भी अलाइन करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे छोटे भाई हैं, मुझे लगता है भगवान की देन है, पियून्स मुझे ऊपर से मिले हैं। अगर मेरे भाई नहीं होते तो मैं यहां नहीं बैठी होती। फोटोकॉपी का काम मेरा भाई है वो स्टॉप वॉच लेके खड़ा रहता था। ही इज परसुइंग क्रिकेट, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था। मेरा लास्ट अटेम्प्ट नहीं, 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट में मुझे पता था कि क्या क्या गलती हुई है, इस बार मुझे ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन छूट गए थे, स्पीड कम नहीं थी। ये बड़ी अजीब सी चीज है, क्वेश्चन छूट गए लेकिन स्पीड तो बहुत अच्छी है लिखने की। कैसे छूटे? क्यों? फिर क्योंकि 20 क्वेश्चंस लिखने हैं। 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 20 बार दिमाग चेंज करना है अपना। तो मैंने देखा इंट्रोडक्शन लिखने में ही टाइम लग रहा है, 6 मिनट का क्वेश्चन 11 मिनट में लिख रही हूं मैं। तो माई ब्रदर सैट विद मी, वो आदमी जो 3 घंटे नहीं पढ़ाई कर सकता, वो मेरे साथ 10-10 घंटे बैठ के पढ़ता था। वो स्टॉप वॉच लेके रखता था, वो मुझे क्वेश्चन पेपर बना के देता था। क्वेश्चन पेपर इन द सेंस दैट वर्कबुक फॉर्म। क्वेश्चन लिखा और फिर उसके बाद 6 मिनट में पेपर छीन दिया, काट दिया, 0 मार्क्स। अगले दिन बेटर करो। हम ये करते गए। विद इन अ वीक आई वॉज एबल टू राइट दोज आंसर्स प्रॉपर्ली। तो जो हेल्प हमें मिल जाती है ना हमारी फैमिली से। मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो मुझे आके कहता है, दीदी आपके इस रिजल्ट में मेरा कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। तो मैं पूछती हूँ कैसे? मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, मैं आपसे बात करने नहीं आया, ये कंट्रीब्यूशन है मेरा। दैट मॉरल सपोर्ट यू गेट, ठीक है? फेलियर नहीं लगता। ये मैं फेलियर से डील करने की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, ये शायद मुझसे नहीं हो पाती अगर मैं फैमिली में ना रहती। राइट? सो मेक देम अंडरस्टैंड, दे विल अंडरस्टैंड। और आप अपना एक कोना ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन घर में बहुत प्यार मिलता है हमको, तो हर दूसरे घंटे लो बेटा ये खा लो नहीं। आप अपना रखो, अलग से रखो, अपना रूम रखो जहां पे शोर नहीं आना चाहिए, ठीक है? वैसे करो आप उसको, लेकिन इट्स वेरी पॉजिटिव। जैसे मैं रोज शेड्यूल बना लेता हूँ लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है। जिसकी आपने बताया कि ईयर वाइज, मंथ वाइज एंड डे वाइज शेड्यूल बनाना चाहिए। देखो आपने बना लिया, आधी जीत तो आपकी वहां हो गई, क्योंकि कुछ लोग बना भी नहीं पाते, ठीक है? मैं बना लेता हूँ लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है ठीक से, पूरे दिन का फॉलो नहीं हो पाता। कुछ % होता है। यस मैम। वेरी 100% कभी नहीं हुआ। मैं 18 घंटे जब पढ़ रही थी तब भी 100% नहीं हुआ वो, क्योंकि आप टारगेट अपने लिए बड़ा लेते हो ना हमेशा। लेकिन उसका 60 to 70% हमेशा होना चाहिए पूरा। उसको कोशिश करो और सांस मत लो जब तक वो 60-70% ना हो। ये अगर आपने कर लिया तो यू विल विन। Throughout the session, you say repeatedly, consolidate what you are learning repeatedly, ma'am. Consolidate what you are learning. Yes. But it is a very tough part for me, ma'am. How to consolidate actually? Alright, people say things, people say big things, humongous things, and it's very hard to abide by them. Like I told you, I asked you to consolidate things. Alright. So I also gave you a solution. How do you consolidate things? You consolidate things by writing them down. If you're doing a topic, or this is very important, this is very easy to understand. We just don't have the zeal to work hard. Utna nahi, we are not able to work that hard. What you have to do is, whatever topic you're reading, for example, you read about Vijayanagar Kingdom today. Alright. Write 2 to 3 questions about that Vijayanagar Kingdom. Write a question about its architecture. Write a question about the administration. Write a question about the culture. If you write these 3 questions after reading that topic, you will never forget that topic. That's how you consolidate. And consolidation you do is by via revision. You do it via revision. The amount you will repeat it, the number of times you will repeat it, is the intensity that will be consolidated in your head. See, repetition is the key. How many times do you repeat it? Consolidation will happen only after repetition.
maybe you're expecting consolidation a little bit earlier. You can only expect consolidation from yourself after repeating it a number of times, at least 5 to 6 number of times, 5 to 6 times. You have to repeat it and it will automatically be consolidated. And look, newspaper is an extensive process. You make notes every day. So what you can do is, you can, whenever you get a little bit of extra time, just go through those notes. And you don't need to consolidate everything 100%. Something would be left even after you give your 100%. We do not have to focus on what little is left. We have to focus on how much we can do. If you can consolidate even 60% of what you have to do, what you are doing, it'll be perfect. If because of that 40% you cannot do, you cannot give away with this 60% also. And as time proceeds, as you learn the process, as you get the knack of the process, you will understand it more. You will understand it better because you do not have to consolidate everything. Once you start writing answers, once you start writing the things down without looking at something else, without copying, when you write from your brain, when you start writing from your brain, you will automatically start to consolidate. That's the way of consolidation. Alright. And as you proceed through the journey, you'll figure it out. Okay. Thank you. Hello ma'am. Good morning. First of all, my first question is, what is your strength and weakness? Strength and weakness. My strength and weakness. My strength is that I'm a nanny cheaty. I'm overly optimistic. I can always find a positive in every situation. मेरा दूसरा नाम सिल्वर लाइनिंग हो सकता है. I can find a silver lining in everything. ये चीज नहीं हुई तो कुछ और होगी, कुछ और नहीं तो कुछ और हो जाएगी. I come from that thought process. Ma'am, I have more questions. One more question, that what motivation to appear in UPSC examination? मेरा, and I can give you a very big answer on that because that would also be true. But the initial reason why I did that is because Papa ne bola. Ma'am, one more question. How to remove homesickness? Homesickness? Yes, ma'am. Here, go to your home and prepare. Alright, but if it's not possible, then no. Honestly, I'm 25 right now. I've just turned 25. मैं सोच रही थी मैं पहले इंटरव्यू कर लूँ तो 24 बोलूँगी. It's so sad. Anyway, लेकिन इतने सालों में the best feeling that I've gotten is when I saw my parents happy. There's no better feeling than making your parents proud and happy. I live in Raipur. My father called me yesterday and he just randomly said, I'm proud of you. It feels so surreal. You want that, keep that thought in your head and work for that. होम सिकनेस मत करो. सिकनेस और हेल्थ में उनकी केयर करने के लिए आप अभी मेहनत करो. Alright, you miss them. Talk to them. You can talk to them. You can video call them. Apart from that, focus on your studies. जो ये अब मैं बांधने की जो टाइम में बात कर रही हूँ वो करो. किसी की कुछ याद नहीं आएगा. And you know, I can also not understand you because I didn't go through that. Alright, I didn't go through that. That's why I get you. Because I cannot give you a short answer to that because I never had to feel that. I never had to go through that. मैं से कैसे बोल दूं कि आप अभी अपने कमरे में जाओ और पढ़ने लग जाओ because I read in a very beautiful environment. पढ़ाई बहुत ज़्यादा की लेकिन I had smiling faces to look at me, to take care of me, to feed me. So you have to find your strength. मैम खुद को अकेले रहना कैसे सिखाए? मतलब अकेले रहना नहीं हो पा रहा है. मतलब बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अकेले रहने की वजह से. See, focus on what you have to do. Focus on your targets. And I think most of the people who are studying here are living अकेला only. So आप सब साथ में अकेले नहीं होगे. So you must have a roommate. So you can talk to them, study together. And as I told you, that success is an uncomfortable journey. Learn to be comfortable. Learn to be comfortable while being uncomfortable. Right? You have to be a little uncomfortable उसमें. तो एक बार आप भूत बन जाओगे ना तो कुछ याद नहीं आएगा. You have to. Thank you.
फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, टॉपर्स को देखते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मतलब अपना ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत सारे आईआईटी से आईआईएम से होते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जैसे जो बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी मतलब कोई इसमें पार्शियलिटी टाइप कुछ ऐसा है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स ऐसे जो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, आईआईटी से हैं, मतलब जो बच्चे अपने स्टेट से कर रहे हैं या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एग्ज़ाम मतलब उतना ही मायने रखता है जितना। ऑफ कोर्स, देखो एग्जाम नहीं करता डिस्क्रिमिनेट। यस मैम। लेकिन आप ये देखो ना कि फॉर्म कौन भर रहा है एग्जामिनेशन का, और ज्यादा लायक कौन है, ज्यादा पढ़ कौन रहा है उस टाइम। ये जो हम देखते हैं डीयू से पढ़ के आने वाले लोग, इंजीनियर्स, ये मेहनत भी तो उतनी ज्यादा करते हैं। हमारे जैसे लोग जो नहीं आते थे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से, अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी पहुंचोगे। यूपीएससी नहीं करता है भेदभाव, यूपीएससी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, यूपीएससी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। लेकिन जो वो दिखता हमको इसीलिए है क्योंकि वो है। यस Those are the people who are filling the forms, those are the people who are qualifying the prelims, mains and interview, इसीलिए हमको ऐसा लगता है। लेकिन there are many people who are qualifying who come from various different backgrounds as well. Very simple college. I myself am from DB Girls College. You must not have even heard the name. यस मैम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपने भी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं किया, यही एक क्वेश्चन था कि मतलब जैसे माइंड में कभी ना कभी होता है। कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अगर मैं डीयू में जाती तो शायद मेरा नहीं हो पाता, क्योंकि हर जगह जहाँ हम जाते हैं वो चीज़ हमको कुछ सिखाती है। This college, the journey defined the trajectory of my life. वहाँ से I learned that I can be a leader. I know how to lead and I worked on a lot many facets of my personality. I learned how to speak there. मैं फ्रेशर्स में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन कंप्योरिंग हमेशा करती थी। I compared for everything, I anchored for everything. I even took classes in my college. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। First of all, start reading properly. Whatever you've read, what I used to do is I used to solve all those papers and then last में I used to have those papers जिनमें बहुत सारा लिखा होता था. I used to revise them along with the little basic things that I used to have. These were the things I used to do. लेकिन इसमें कुछ नया नहीं होता था. If you pick something up which is entirely new to you, वो याद भी नहीं होगा, वो आपका सारा टाइम भी ले जाएगा. And उसमें practice, you don't have to stop the practice. Online practice, offline practice आप करते रहो. Keep solving the questions. Everybody who has just completed their 12th, whoever is here and who has the humanities subjects, आप लोग अभी बस वो करो जो आपके सामने है. You do not have to think about anything else. You just have one job to gain mastery over the subjects that you have right now. If you do that, if you do not run after all of these other things, current affairs हो जाएंगे जब आपका टाइम आएगा. अभी नहीं करने की वो जरूरत, अभी आपको सिर्फ जो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं वो करना है. You have to gain mastery over that subject. मैंने किसी को बोला अभी कि उतनी मास्टरी कर लो कि आप उनके ऑप्शनल पेपर्स को सॉल्व कर पाओ. And if you are thinking about UPSC, if you're so straight-headed about it, you read those subjects in the pattern of UPSC. उन सब्जेक्ट्स के PYQs को देखो, उन सब्जेक्ट्स के PYQs को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और क्वेश्चन सॉल्व करो, नई नई बुक्स पढ़ो, एक्सप्लोर दैट सब्जेक्ट, लर्न दैट सब्जेक्ट एंड गेन मास्टरी ओवर दैट सब्जेक्ट. दैट इज योर जॉब राइट नाउ. ऑलराइट. Good afternoon. Actually, my question is different. I was a good student till class 10th. I topped in class 10th. I got 94%. But in class 12, due to some problems, I distracted a lot with friends, going here and there. I failed very badly in class 12. I just passed in one subject in maths and totally failed. I gave a re-exam. Then I passed and got 65%. Then I completed my graduation. But that thing is still demotivated me a lot. How I can do? What was the last line? Please repeat it again. That thing is still demotivated me a lot. See, I told you that one day, 1 year cannot define your life. You're motivated right now, right? No, still I am.
you're demotivated right now. But the fact that you're here, all right, you're sitting in the front row, look at me. Why are you looking down? You have asked me a question, look into my eyes, all right. Whenever you talk to a person, look into their eyes while having that conversation. आप में इतनी हिम्मत थी कि आपने इतने सारे लोगों के सामने यहाँ खड़े होकर ये क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब है कि आपने उससे लड़ने की भी हिम्मत है. हम उन्हीं सवालों के क्वेश्चन, वही सवाल पूछते हैं, इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब हमारे अंदर ऑलरेडी है, बस हम किसी से सुनने की उम्मीद कर रहे हैं. यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड, यू आर नॉट डीमोटिवेटेड. आप ये पूछते ही नहीं. अगर आप डीमोटिवेटेड होते तो आप वहां कोने में बैठे होते एकदम ऐसे करके. यू आर सिटिंग इन द फ्रंट रो एंड यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन. यू आर रेडी. 12th में मैं भी ऑलमोस्ट फेल होने वाली थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आई टॉप माई ग्रेजुएशन आफ्टर दैट. तो जो जर्नी है वो हमारी ऊपर नीचे चलती रहती है, एक दिन डिफाइन नहीं करेगा आपके लाइफ को. ऑलराइट, व्हाट विल डिफाइन यू is the effort you decide to put in the day you decide what you have to do. कर लिया ना आज डिसाइड क्या करना है. आज से जो मेहनत तुम करोगे, आज से जो मेहनत आप करोगे, वही डिसाइड करेगी कि आपका कल कैसा दिखेगा. ऑलराइट, forget about what happened before. भूल जाओ. ऑलराइट, and kudos to you for asking that question. Kudos to you. All right. So it was really interactive. It was really beautiful talking to you all. I get such positive energy from here. I'm getting such positive energy from here. I hope that you all do very well. I hope you qualify the examination. I hope you reach wherever you want to reach. जो भी आपको चाहिए वो आपको सब मिले. Just remember, choose the right wall. Feed the right wall. Depression will get you nothing. It's on you. It's entirely on you. It's on you as well. ठीक है, आप मेहनत करो और उस मेहनत में खुश रहो. Once you read honestly, जब हम खुद से honest होने लगते हैं, when we work hard with all our sincerity, that gives us a sense of satisfaction. उससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो हटने लगती है. तो बी पॉजिटिव एंड keep going forward. Thank you. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.